You're watching Toronto 360 TV with Saber Gaya. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome you on behalf of PTI GTA, Mr. Akbar Waraich and his team, who have done a wonderful job here with less than 24 hours to have this prepared. Give them a big hand, please. We would like to begin with the recitation of the Quran, and I would like to invite Brother Qari Muhammad Shafiq Ahmed, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين
فلا مرد له وما لهم من دونه من وال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. With this, I would like to invite Ms. Zarka to say the Pakistani national anthem, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pak sar zameen shad baad, kishwar haseen shad baad, tu nishane azme ali shan arz-e Pakistan, markaz-e yakeen shad baad. पाक सर ज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते क़ुव्वते अवाम को मुल्क सल्तनत पायंदा था बिंदाबाद शाद बाद मंज़िले मुराद परचमे सितारा ओ हिलाल रहबरे तरक्कियों कमाल तर्जमानी माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साया-ए खुदाए ज़ुल जलाल. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Excellent. Thank you, sister. With this, ladies and gentlemen, we would like to invite and we do a welcome to our chief guest and honorable Deputy Speaker of the National Assembly, Mr. Qasim Khan Suri. Please give him a big hand. He should feel like home. I need more applause, please.
this, also would like to acknowledge the President of the PTI GTA, Mr. Akbar Waraish. Please give him a big hand. We would also like to welcome Senior Vice President, PTI Canada, Chaudhry Naim Riyazat. Please give him a big hand as well. And the last not the least, thank you, the media and all the audience here for a beautiful evening. You all deserve a big applause as well. We have a beautiful audience with full of energy. With this, I would like to invite on the stage Mr. Chaudhry Naim Riyazat, the Senior Vice PTI Canada, to share a few words with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन मेरे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर कासिम सूरी साहब वेलकम टू कनाडा एंड हमारे सब दोस्तों को वेलकम करता हूं जो इस साल में हैं और स्पेशली अकबर वड़ाइश साहब का जिसने इतना प्यारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और पूरी जीटीए की टीम को जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया है मसलन जीटीए के अंदर माशाल्लाह ये पहला हमारा प्रोग्राम है इस पैमाने पे इंशाल्लाह कंटिन्यू करना है इस प्रोग्राम को आगे भी काफ़ी डेलीगेट आ रहे हैं मसलन पाकिस्तान से तो मैं शार्ट अल्फाज में यही सबका थैंक यू करता हूँ कि जो मसलन इस हाल में इस वक्त हैं और प्लीज़ कीप इट अप एंड वी आर सपोर्ट फॉर इमरान खान एंड वी आर सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह वी आर कंटिन्यू सपोर्ट फॉर इमरान खान और पाकिस्तान थैंक यू Mr. Naim. With this, I would like to invite on the stage Mr. Akbar Waraish, the President for the PTI GTA. He is a tiger. He has proven that alone and lonely he has done and a fight which he has put up. He needs a big applause. Gentlemen. अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं जनाब ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली कासिम खान सूरी को अपनी पीटीआई की इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ और उनके साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई कनाडा जनाब नईम रियाज़त साहब तशरीफ़ रखते हैं उनको भी मैं अटवा से यहाँ पे तशरीफ़ आवरी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और शहराज भाई वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साउथ ओंटारियो वो भी तशरीफ़ रखते हैं और नमल के रूह रवां जनाब वसीम दुरानी साहब उनका भी शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और मैं अपनी तमाम टीम पीटीआई कनाडा और पीटीआई जीटीए का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सब लोग जो इतनी मोहब्बत और प्यार से इतने विदिन 24 आवर नोटिस आई एम हम्बल्ड आई हैव नो वर्ड टू से थैंक्स बट थैंक यू वेरी मच गाइस यू आर वंडरफुल पीपल और हमारे साथ मीडिया स्पेशली उनका भी बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट टाइम में आए डॉक्टर साहब डॉक्टर तारिक साहब हमारे पुराने कलीग उनका जनाब शाहिद वड़ाइश साहब शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का तो एक शेर है जनाब हमारे मुजफ्फर वारसी का वो कहते हैं शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता लहरों से लड़ता हूँ दरिया में उतरकर लहरों से लड़ता हूँ दरिया में उतरकर साहिल पे खड़ा होके साजिश नहीं करता जनाब डिप्टी स्पीकर साहब हम आपके तंजीमी साथी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
आज हमें आपके साथ जो है वो हैंडशेक करने का और मिलने का शरफ हासिल हुआ है। और इसके साथ साथ मैं सबसे पहले जो ये पोजीशन अल्लाह ताला ने मुझे नवाजी है आप दोस्तों साथियों की मेहनत और काविशों से, तो इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है जनाब OIC के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब को और इलेक्शन कमीशन को, जिन्होंने 20 नवंबर को इलेक्शन का इनकाद किया। और हमारे जितने भी यहाँ GTA एक ऐसा चैप्टर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में, सिर्फ कनाडा में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में ये एक पहला चैप्टर है कि जो इलेक्शन से पहली दफ़ा पाकिस्तान की PTI की हिस्ट्री में इलेक्शन हुए और पूरे कनाडा में 2409 मेंबरशिप की गई और सिर्फ GTA में 1500 मेंबरशिप की गई। तो आपकी मोहब्बत और आपका वालेहाना PTI से मोहब्बत, ये सब जाहिर करता है कि किसी जगह भी कोई इलेक्शन का इनकाद नहीं हो सका। लेकिन PTI एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मुख्तलिफ दड़े आपस में कंटेस्ट किया और फिर PTI टाइगर को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ PTI नया पाकिस्तान को, जिनके साथ हमारा कंटेस्ट हुआ। एंड दे आर ऑल्सो द ग्रेट टीम, they are all my seniors. I was even part of नया पाकिस्तान बैक टू ईयर। लेकिन ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है कि इससे पहले हमारी जो पार्टीज बिना करती थी वो किस बेस पे होती थी कि बिजनेसमैन का टोला मिल गया तो उन्होंने एक पार्टी बना ली, जागीरदारों का टोला मिल गया तो उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली। सब अपने अपने फ़ायदे लेते रहे और उसी मुल्क को प्लाटों की शक्ल में, कर्ज़ों की शक्ल में बेचते रहे। किसी ने रिलीजियस के नाम पे सियासत की, किसी ने मरहूम कुछ नाम है उनके नाम पे की, किसी ने इस्लाम के नाम पे जो है वो सियासत की। लेकिन PTI ये एक रियल डेमोक्रेटिक पार्टी है जो सिर्फ नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाती, वो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी इनकार करती है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ जितने भी चैप्टर में, उनमें एक तंजीमी शक्ल में सबसे फाल सूरत में मौजूद है। अब इसका तरीकाकार ये है कि हमें सबको साल में $60 देकर मेंबरशिप लेनी पड़ती है और फिर हमें वोटिंग का हक हासिल होता है और हम अपने फेवरेट कैंडिडेट को, फेवरेट पैनल को अपना नुमाइंदा समझकर उसे चुनते हैं। यह प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए, इससे अच्छे लोग आगे आते हैं और जो पार्टी के लिए बाइस से शर्म होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे लिए ये है कि हमें कोई भी बंदा जो हमारे साथी हैं PTI के डेजिग्नेटेड डिग्निटरीज आते हैं पाकिस्तान से, उनको इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। दोस्तियाँ अलग हैं, इंस्टीट्यूशन अलग हैं। इमरान खान इंस्टीट्यूशन की बात करता है, वो करता है कि अदारे मजबूत हों, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, शख्सियात को नहीं। डिक्टेटरशिप आती है, करप्शन आती है, टाउटिज्म आती है। मेरे दोस्तों, हमारे कुछ यहाँ पे ऐसे भटकती हुई रूहें हैं जो PTI में कुछ अर्सा पहले थी और आज उनके पास $60 भी नहीं है PTI की मेंबरशिप के लिए, और अपने आप को वो फाउंडिंग मेंबर, एडवाइज़र और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पाकिस्तान जाते हैं
हमारी पर्सनालिटीज़ के साथ, हमारे जो पीटीआई के प्राइड्स हैं उनके साथ पिक्चर बना के तो यहाँ पे आके जो टौटी करते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं, जब उनसे पूछा जाए हिसाब नहीं देते, फिर चोर रास्ता निकाल के तो अपॉइंट होना चाहते हैं। तो क्या आप दोस्तों उनको कबूल करेंगे? किसी सूरत में कबूल करेंगे उनको? इंशाल्लाह हम उनको ऐसे चोर रास्तों से आगे जो आने वाले हैं उनको ज़मीन में उस जगह गाड़ेंगे कि बाहर भी ना निकल सकेंगे। और मेरे भाइयों, यहाँ पे एक ग्रुप है, उसका सरकर्दा मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मजहबी मुनाफरत फैला रहा है यहाँ पे। वो सुबाइयत की सियासत करना चाहता है। तो क्या ऐसे लोग, ऐसे बंदे को कनाडा में सुबाइयत और मजहबी सियासत की इजाज़त होनी चाहिए? हम यहाँ पे मुसलमान हैं, पाकिस्तान के हिंदू भी होंगे, सिख भी हैं, और भी जो है ना वो अक़लीतों से यहाँ पे लोग जो है ना वो कनाडा में बरसों से साल रह रहे हैं, अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान बेचते हैं, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है। हम इस झंडे के तले, चाहे वो पाकिस्तानी कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हम इस परचम के तले सब एक हैं। और जो कोई भी बंदा यहाँ पे लसानियत फैलाएगा, अकबर की आवाज़ सबसे पहले उसे पकड़ेगी इंशाल्लाह। और दूसरा कि हमें अपने जनाब ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर से भी ये गुजारिश है कि जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ओआईसी का जो एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पीटीआई पूरा जो पाकिस्तान हो या ओवरसीज़ हो, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लोग अकबर की शक्ल से नफरत करते हों अलग बात है, लेकिन मैं पीटीआई का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं। ऐसे लोग जो पीटीआई के पैरेलल बॉडी बना के आपने मुख्तलिफ नामों से चल रही है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दे आर नो वन, नथिंग। और उनको सपोर्ट किया जाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। हमें बाईपास किया जाना कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। यह खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। हम मेंबरशिप लेते हैं, पार्टी जो पाकिस्तान में काम करती है उनके ऑफिस, उनकी पेज जाती हैं। जब मामला आते हैं कि मीडिया के लिए कैंपेन करनी है, वहां पे जो है ना रजा चाहिए, तो हम आगे आते हैं। जब वहां पे स्कार्फ लेने हो, बैनर्स लेने हो, तो वहां से हुक्म आता है तो हम अपनी जेब से पैसे देते हैं। लेकिन जो दुकानदारियां चलाने वाले हैं यहाँ पे, वो किसी के नाम से पैसे इकट्ठे करते हैं, वहां पे जाके नहीं देते। जब उनसे पूछा जाए कि भाई आपने पैसे इकट्ठे किए थे किधर, जवाब नहीं है। डैम फंड महफूज है, फिक्र नहीं करें। हमने लास्ट टाइम जो किया था, हमने 387,000 इकट्ठा किया था विद द हेल्प ऑफ वाजिद मलिक एंड आरिफ शेख, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई करप्शन नहीं हुई। दैट्स अ क्लियर नीड। और जो नमल का यहाँ पे हम अदारा है, हम उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, उसमें करप्शन नहीं होती, ट्रांसपेरेंट है, काउंटेबल है। हमें हर चीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है, और कोई क्वेश्चन हो हमें उसका आंसर दिया जाता है। तो मेरा मकसद यहाँ पे सियासत में आने का, आप लोगों को पता है, सबको पीटीआई के अंदर बाहर सबको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, सबको काउंटेबल होना पड़ेगा।
कोई भी पाकिस्तान के पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज और कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन नहीं कर सकेगा। हाईजैक करना यह पहली दफा नहीं हुआ। पिछली दफा आपको याद है यही हाल था, गवर्नर चौधरी सरवर आए थे और उनको रोका गया कि आपने इधर नहीं जाना अकबर के पास, लेकिन फिर उनको आना पड़ा। हम चाहते हैं कि हमें किसी से सिफारिश क्यों करवानी पड़े अपने साथी को मिलने के लिए? हमारे भाई हैं वो, हम उनके साथी हैं, वर्कर हैं। उनका दोस्ती का तल्लक अलग हो सकता है, लेकिन हमारा तल्लक एक कॉन्स्टिट्यूशन से है। चौधरी सरवर यहाँ पे आया, उन्हीं टोटों ने उनको हाईजैक किया, ऐलान किए 25 जो है ना वो पंप दे देंगे, बाद में चला उन्होंने पंप दिए। 2-3 लाख डॉलर लोगों से लिया, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मैं पूछता हूं उनसे, क्या उन लोगों ने जमा करवा दिए? कोई पैसा नहीं गया पाकिस्तान। वहां पे सिर्फ ये था कि इमरान खान के साथ जाके पिक्चर लेनी थी चौधरी सरवर का इस्तेमाल करके। हमें देखें, मैं माजरत चाहता हूं अगर मैंने किसी की दिल आजारी की हो, लेकिन आई डोंट वांट टू बी ह्यूमिलेटेड। मुझे कोई मेरी बेइज्जती ह्यूमिलेट नहीं कर सकता। और खासकर उन बंदों के लिए जिनका पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, जिनके पास पार्टी की मेंबरशिप भी नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए हमारी पार्टी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये मुझे उन लोगों ने जिस तरह किया है वो अकबर की बेइज्जती नहीं कर रहे, वो पीटीआई की बेइज्जती कर रहे हैं, वो पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहे हैं। और उनको समझ लेना चाहिए कैसे ओछे हाथ कंडों से भी इंशाल्लाह आज इलेक्शन कर लें, मैं उससे भी डबल हराऊंगा उनको। और पहले इलेक्शन में जो नवंबर 20 को हुआ है, टांके काम भी हैं उनकी, और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने खड़े भी हो सके। जो खड़े हुआ, आई सल्यूट and I respect team Naya Pakistan and I honor them. They were with me in all situations. I don't know guys if somebody is here from team Naya Pakistan. Is there anyone from team Naya Pakistan? अगर है, नहीं है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी अल्लाह ने चाहा तो ऐसे इलेक्शन होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया जी। You're watching Toronto 360 TV with Saber Gaya. Not known Brother Akbar for a long time, but I have to admit and acknowledge I have found him at the utmost with the highest level of integrity, honesty, and a man of his word. And probably he resembles and he reflects the logo of the tiger in his logo. और पंजाबी में कहते हैं ना तू चीता है. He is one of the tigers. Give him a big hand of applause, please. With this, I would like to invite on the stage the 19th and the current Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan, Mr. Qasim Khan Suri. You should give him a big applause so he should feel that you're in here. He is in Pakistan. Please, ladies and gentlemen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट सदर जो हैं पार्टी के जनाब मोहतरम अकबर वड़ैच साहब, उसके साथ साथ मोहतरम नदीम
यूनुस साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे नईम, रियाजत साहब, मोहतरमा जरका साहिबा और इसके साथ साथ पीटीआई टोरंटो के ओहदेदारान, कारकुनान और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पे टोरंटो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी काबीना है, इसकी दावत पे मुख्तसर वक्त में आप सब इकट्ठे हुए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। मुझे मौका मिला आज कि मैं अपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातिब हो सकूं जो बड़ी मेहनत के बाद और एक मुश्किल वक्त गुजारने के बाद आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, यहाँ पे अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, ख़वातीन भी हैं यहाँ पे, आपसे आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आपको जिस तरह पता है कि तकरीबन 22 साल की जदोजहद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में वफाक में हुकूमत आई। इससे पहले 2013 में जब हमारे इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा था जिसकी आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान के विजन को वोट दिया और हमारी वहाँ पे हुकूमत आई। आपने देखा कि उन टफ हालात में जब वफाक में किसी और की हुकूमत थी, मुश्किल टाइम था सूबे में परफॉर्मेंस देना, और हमारे कायद इमरान खान एक तहरीक को और तेज करने की तरफ चले और 2014 में 126 दिन का हमने धरना दिया उस धांधली के खिलाफ और अदालत में गए, इलेक्शन कमीशन में गए। जब हर तरफ से मायूसी हुई, उसके बाद हमने 126 दिन का धरना दिया और अवाम को उस धरने ने बहुत शऊर दिया। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी थी। लोगों ने कहा हुकूमत की तरफ तवज्जो दो, आप ये क्यों एहतजाजी तहरीक आपने शुरू की? लेकिन आप उसका विजन देखो इमरान खान साहब का, कि उन्होंने पूरे मुल्क को एक सियासी शऊर दिया। लोग गौर से सुनते थे उनकी स्पीच। मैंने खुद 126 दिन उस धरने में दिए और मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ रह सकूं। और मैंने तकरीबन जब 30 अगस्त की रात थी, उसके बाद जो शेलिंग की रात थी, वहां पे मैं खड़ा रहा उनके साथ और उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ कंटेनर में भी वक्त गुजार सकूं, उनके साथ सो सकूं। और तकरीबन जब तक धरना रहा मैं उनके साथ रहा और मुझे एक मौका मिला कि अपने लीडर के साथ रहूं, देखूं उस विजन में, उस जदोजहद में जो हमने शुरू की, उसमें एक हौसला, एक जज्बा मिला कि एक शख्स किस तरह बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ अपने उस विजन में लगा हुआ है कि उसने इस पाकिस्तान को सही करना है। जो ये एक माफिया था इस मुल्क के ऊपर, जो एक करप्ट माफिया, जो समझता था कि जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वो 30 साल से जिनके कंट्रोल में था, और वो शख्स जो तीसरी दफा वजीर आजम बन चुका था। पाकिस्तानी, आप यकीन करें, हम जहां पे भी जाते थे हम पे हंसते थे शुरू में, तो जब ये जमात बनी कि आप जो है, आप एक फैन क्लब हो, इमरान खान के फैन वाले, चाहने वाले लोग हो, आपको देखो और सियासत को देखो, और वो भी इस मुल्क की सियासत जिसमें पैसे का लेन देन है, जहां पे खानदान आते हैं सिर्फ, तो ये इमरान खान और तुम लोग कहां से आओगे? तो मैं उस टाइम भी जो हमारे पाकिस्तानी थे, चाहे वो कनाडा में थे, चाहे वो दूसरे ममालिक में थे, उन्होंने हमेशा इमरान खान का साथ दिया, हमारी जमात को फंड दिया। और आज फिर वो दिन भी आया 2018 का, जब पूरी कौम इकट्ठी हुई और आपके ओवरसीज, आपको मैं सलाम पेश करता हूं कि जहाज भर भर के गए पाकिस्तान, आप हमारा हौसला बने। आपने हर सतह पर इमरान खान का साथ दिया
मैं समझता हूं जो तकरीबन 70 से 80 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, उसमें से मेरा अपना जो तज्जिया है, मैं बाहर जाता हूं मुख्तलिफ ममालिक में, तो तकरीबन 90 से 95% ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमदर्दियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ हैं। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की उम्मीद, मैं कहता हूं कि तमाम ओवरसीज की भी जो उम्मीद थी पाकिस्तान से, वो भी उन्होंने इमरान खान के साथ लगाई कि ये एक शख्स है जो ईमानदार है, जो अगर पाकिस्तान का वजीर आजम बना तो उनका सर फख्र से बुलंद होगा ओवरसीज का, कि कम से कम पूरी दुनिया कह सकेगी कि हमारा वजीर आजम एक ईमानदार आदमी है, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करेगी। आप खुद देखें, जब आपका इससे पहले जो वजीर आजम जब आते थे तो यहां पर सर शर्म से झुक जाती थे पूरे कौम के, जब वो पर्ची निकाल के पढ़ते थे, हाथ कांपते थे, पसीने से शराबूर, और समझ में नहीं आता था कि क्या अभी हम करें। आज आप यकीन करो कि जब हमारा वजीर आजम कहीं पे भी दुनिया में जाता है तो वो पूरा मौकिफ पेश करता है अपनी कौम का, और एक फख्र के साथ कि पाकिस्तान, मेरे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, मैं आपको पाकिस्तानियों बताता चलूं कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर इस दुनिया में वजूद में आया। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है जो एक नजरिए पे बना। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये अजीम आज़ादी की जदोजहद शुरू की, और उस जमाने में जो मुसलमान थे उनको कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा था जो उनका मुकदमा लड़ सके, तो कायद आजम ने दो कौमी नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदुओं का मजहब, सकाफत, उनका रहना, माशी आज़ादी, मजहबी आज़ादी नहीं है वहां पे, सियासी आज़ादी नहीं है, समाजी आज़ादी नहीं थी उस माशरे के अंदर। अगर हमने एक आज़ाद, जो मुसलमानों का शेवा रहा है हमेशा से कि आज़ाद मुमलकत में हर जगह जाते हैं और वहां पर एक आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वो वहां पे नहीं गुजार सकते थे। तो आप देखो उस दौर में उन्होंने ये नजरिया पेश किया कि मुसलमानों को एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे वो इस्लामी अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें और सियासी आज़ादी, मजहबी, माशी, हर आज़ादी के साथ रह सकें। तो नौजवानों, आज जब हम हिंदुस्तान का वो चेहरा देखते हैं जिसके अंदर वहां पर 80 लाख कश्मीरियों को तकरीबन 160 दिन होने को आए हैं, मैसूर किया हुआ है, जहां पर सिटीजनशिप का नया कानून लेके आए और आज पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज बना हुआ है। आज महसूस होता है कि कायदे आजम की वो सोच, दो कौमी नजरिए की सोच, उस दौर, उसको कहते हैं लीडर, जो आज से 70-80 साल पहले भनक गया, पहचान गए कि ये हिंदू जो हिंदू राज चाहते हैं, ये हमें नहीं रहने देंगे आज़ादी के साथ। तो ये हमने जो मुल्क लिया, ये एक नजरिए पे लिया। आज 57 इस्लामिक ममालिक में वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो नजरिए के नाम पे बना। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी 22 करोड़ और उसमें 68% नौजवान हैं। तो पूरी मुसलमान उम्मा में सबसे ज्यादा नौजवान, उम्मा का नौजवान आज पाकिस्तान में है। मेरे कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान 57 इस्लामिक ममालिक में वो वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। पाकिस्तान वो 57 मुस्लिम ममालिक में वाहिद मुल्क है जो पाक अफवाज जैसी एक माहिर तजर्बाकार फौज रखता है। मेरे यहाँ पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात,
मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, हर चीज़ दुनिया ने दी, वहाँ पे साहिल समंदर है, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी, मादनियात से भरा हुआ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आप लहराते हुए खेत पंजाब में, सिंध में, आप देखें दुनिया की हर नेमत दी, और जो सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा असासा वो पाकिस्तानी है जो जिनको मौके मिले दुनिया में। जब आप आए एक सिस्टम वाले मुल्क में, आप देखो आपने यहाँ पर हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। वो हमारे पाकिस्तानी जो मेहनती हैं, उन्हें मौके नहीं मिले पाकिस्तान में। वो जो क़यादत ऊपर जो करप्ट बैठी थी, एक माफिया, उसने इस पाकिस्तान को रोके रखा, इस पाकिस्तान को करप्शन ज़दा बना दिया, मकरूज बना दिया। आज जब हम और आप देखते हैं कि 22-23 साल पहले ये जमात बनी, जो इंसाफ के नाम पर बनी, तहरीक इंसाफ नाम रखा गया, उसके 3 बुनियादी एजेंडे रखे गए कि पाकिस्तान में अदालती इंसाफ नहीं है, हम उस अदालती इंसाफ की जंग लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए। तालीमी इंसाफ नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हर पाकिस्तानी को एक जैसा तालीमी इंसाफ मिल सके, एक जैसे मौके मिल सके। हमने 23 साल पहले जंग लड़ी माशी इंसाफ की कि माशरे के अंदर इंसाफ नहीं है, एक जैसा ऐसा माशरा बनाएं जिसके अंदर एक जैसा इंसाफ हो, अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो, गोरे और काले का फर्क खत्म हो, रंग और नस्ल का फर्क खत्म हो, तासुबियत खत्म हो, और एक पाकिस्तानियत हम सब के अंदर आए। ख्वातीन और हजरात, ये एक मामूली जद्दोजहद नहीं थी। 2018 का इलेक्शन कोई मामूली जीत नहीं थी। ये उस माफिया के खिलाफ थी जो शुरू से वडेरा शाही देखता रहा इस मुल्क में, जो हमेशा से हौसला शिकनी करता था आम लोगों को सियासत में आने के लिए, इमरान खान पे हंसता था, जो कहता था कि हमेशा नवाब का बेटा आ सकता है, सरदार आ सकता है, वडेरा आ सकता है, जागीरदार आ सकता है, सनतकार आ सकता है, कोई रिटायर्ड फौजी आ सकता है, लेकिन एक आम आदमी पाकिस्तान की सियासत में नहीं आ सकता। 22 साल की जदोजहद के बाद पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया, और आपने देखा कि किस तरह एक आम मेरे जैसे लोगों को, और बहुत से मेरे जैसे लोग हैं इस असम्बली में जिनको इमरान खान के नाम पर लोगों ने चुना और कौमी असम्बली का मेंबर बनाया, और आपका और मेरा वो ख्वाब कि इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने 2018 में, आप लोगों की कोशिशों से, अवाम के शऊर से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया। आपको बताता चलूं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। एक उस सिस्टम में जहां पे माफिया छाया हो, जहां पे तीसरी चौथी दफा बारियां ली जा चुकी हों, जहां पे एक इंस्पेक्टर जो भर्ती किया हो उनके दौर में वो एसपी और आईजी लेवल पे पहुंचा हो, जहां पे एक मामूली टीचर हेड मास्टर हो, उनके दौर के लोग हंसते थे, बोलते थे तुम नहीं आ सकते हो पंजाब में। जब आए फिर लोगों ने कहा कि तुम चल नहीं सकते हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तजर्बेकार है। मेरे जैसे लोगों को कहते थे कैसे चलाएगा ये असम्बली, लोगों को कहते थे ये इमरान खान के साथी ये क्या करेंगे। तो नौजवानों, हमने इमरान खान साहब से एक चीज सीखी थी, मुसलसल मेहनत, कभी भी हार ना मानना, और इरादे का पक्का होकर जो सोच और फिक्र थी कि इस मुल्क को बदलना है, इस मुल्क में भी उसी तरह का इंसाफ लाना है जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में थे। तो मेरे दोस्तों, जब हमें हुकूमत मिली, आप यकीन करें कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, माशी बदहाली थी इस मुल्क के अंदर, खजाना खाली था, और एक चैलेंज हमें मिला उस ऐसे टाइम में। आप सोचें 2008 तक 60 सालों में 6000 अरब रुपए कर्जा था इस मुल्क में, उसमें 3-4 दफा फौजी अदवार भी आ चुके थे, उसमें मुल्क में एटम बम भी बन चुका था, मुल्क के इदारे बड़े आगे थे उस दौर में 60 सालों में। उसके बाद जो ये 2 पिछली हुकूमतें आई हैं,
इन्होंने 2008 से 2018 तक 24,000 अरब रुपए और लिए। 4 गुना ज्यादा कर्जा जो 60 सालों में था वो इन 10 सालों में 4 गुना ज्यादा लिया। जब हमें ये मुल्क मिला तो 30,000 अरब रुपए मकरूज। इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी थी, बाहर गए, अपने दोस्त ममालिक के पास गए, पैसा इकट्ठा किया, कुछ चलाने की तरफ गए इस मुल्क को, कफायत शारी शुरू की हमने इस मुल्क में। लोग हंसते थे, लोग कहते थे कि कैसे इमरान खान साहब अकेला रहेंगे घर में। साबित करके दिखाया, आज भी उसी घर में हैं जो वजीर आजम बनने से पहले थे अपने घर में। वो 560-70 मुलाजिम नहीं रखे उन्होंने। आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, कौमी असम्बली में जब हम आए तो पहले सिर्फ 7 माह के अंदर 64 करोड़ रुपए की हमने बचत की। हालांकि डॉलर बढ़ गया था, हमारा खर्चा ज्यादा होना चाहिए था। इमरान खान साहब ने हमारे दफ्तरों में जो इससे पहले खाने दिए जाते थे मेहमानों को, चाय और उनकी तवाज़ा की जाती थी, कट लगाया। उन्होंने कहा तुम मेरी टीम का हिस्सा हो, कोर टीम का, जो उन्होंने हमें आगे लेकर आए कि तुमने मिसाल बनना है। तुम और मैं उस मुल्क के हुक्मरान बने हैं जिसमें गुर्बत है, जिसके अंदर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं जाता, जहां पर बुनियादी सहूलतें हम नहीं अभी तक दे सके, जहां पे साफ पीने का पानी नहीं है, जहां पे सही सेहत की सहूलत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डैम्स नहीं है, बिजली नहीं है। तुम उस मुल्क के मेरे साथ हुक्मरान बने हो, तुमने वो नखरे और वो चीजें नहीं करनी, आजिज़ी के साथ रहना है। ये जो सरकार का पैसा है ये गरीब आवाम का पैसा है, इसको खर्च नहीं करना तुमने। आप यकीन करें कि हम जो बड़े बड़े ओहदे आप समझते हैं कि ये बड़े बड़े ओहदे हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमें। हम उसको जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कि ये एक अल्लाह ने 22 करोड़ लोगों में हमें चुना है एक मेहनत के बाद, तो हमने उस तरह नहीं रहना जो जिस तरह पहले थे। कम खर्च करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात अपना देते हैं कि इस मुल्क का जो हाल किया था उससे हमने इसको बदलना है। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो 15 महीने गुजरे हमारे, ये एक मुश्किल वक्त था। कौम पे मुश्किल वक्त आते हैं, फिर ही कौमें जो है वो उठती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। मैं आपको बताऊं जो हमने कुछ चंद काम किए इन 15 महीनों में। आपसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या किया इमरान खान ने। देखें, मुल्क और कौमें वो 15 महीने में या 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं बनती। मैं आपको मुख्तसर मिसाल दूंगा। अमेरिका और इस मुमालिक, ये जो है आपका कनाडा, तकरीबन आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे माशी बुरान आया। आपने देखा अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, सुपर पावर दुनिया की, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, तरबियत याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग। जब वहां पे माशी बुरान आया तो आज 12 साल बाद भी अमेरिका उस जगह पे नहीं पहुंच सका जो 12 साल पहले था, जिस तरह वहां पे पहले नौकरियां दी गई थी। तो वो पाकिस्तान जो मकरूज है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, जिसके इदारे तबाह हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि वो वहां पे कोई ऐसा जादू की छड़ी होगी कि हम और आप उसको एकदम सही कर देंगे? नहीं, वक्त लगता है। एक सिमत मुतय्यन की है हमने, और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि बहुत सी ऐसी हौसला अफजा चीजें हैं जो बहुत मुश्किल है कि इतनी जल्दी सही हो, जो हमने और आपने, आपकी दुआओं ने, आपकी भी मेहनत है इसके अंदर, जो सही हुई है। मैं आपको उसमें जो सबसे पहली चीज बताऊं, जो करंट डेफिसिट था वो हमेशा खसारे में रहा इस मुल्क का, और पिछले 4-5 सालों में ये पहली दफा हुआ है कि एक बेहतरी आई है इस मुल्क की मईशत के अंदर। आपने स्टॉक एक्सचेंज को देखा, हालांकि धरना भी चल रहा था हमारे खिलाफ इस्लामाबाद में, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा था। आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डॉलर को जो है वो आजाद छोड़ा गया। हमेशा मसनूई तरीके से डॉलर को रोका जाता था, अरबों रुपए लगाए जाते थे कि उसकी एक कीमत मसनूई तरीके से रोकी जाए। एक दलेराना फैसला किया इमरान खान साहब ने और उसको छोड़ा।
आज आप देखें वापस डॉलर अपनी पोजीशन पे आ रहा है, दिन ब दिन रुपया मुस्तहकम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हमने हौसला शिकनी की, इंपोर्ट की, हमने वो फिनिश चीजें जो पाकिस्तान में बाहर से आती थी उस पर ड्यूटी ज्यादा की और जो रॉ मटेरियल था उसको हमने सस्ता किया। इसी वजह से जो हमारे 15 महीने हैं इसके अंदर तकरीबन 19% इंपोर्ट पाकिस्तान की कम हुई है, जिसमें डॉलर देना पड़ता है आपको, और एक्सपोर्ट तकरीबन 6 से 7% इजाफा हुआ उसके अंदर कि डॉलर आए पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ आपने देखा कि हमने जो पनाहगाहें बनाई गरीबों के लिए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, पहली दफा पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स आया जिन्होंने ओन किया, उनको निकला, उनके लिए बाहर पनाहगाहें शहरों में बनाई। हुकूमत के पैसे से नहीं, मुखय्यर हजरात के पैसों से उनके सर पे हाथ रखा वजीर आजम ने कि आओ मेरे साथ खैर का काम करो। आपने देखा पहली दफा एक ऐसा एहसास के नाम से हमने प्रोग्राम शुरू किया गुर्बत मिटाओ के हवाले से, कि उसके अंदर जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत हो, उसकी तरफ लेकर गए इस मुल्क को। और एहसास प्रोग्राम के नीचे उसके साए में कई और प्रोग्राम हैं। उसके अंदर मैं आपको बताता चलूं, जो बेवाएं हैं, जो यतीम हैं, जो मसाकीन हैं, जो माजूर हैं, उनके लिए पैसे रखे गए कि उनको किसी तरह हम उनको उठा सकें वापस और उनको उनकी मदद कर सकें। एहसास प्रोग्राम के अंदर हमने इंसाफ सेहत कार्ड का आगाज किया। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हमने लोगों को 7,20,000 रुपए का कार्ड दिया कि अगर आपका कोई प्यारा बीमार होता है तो आप ये कार्ड इस्तेमाल करो, आप किसी भी अस्पताल में जाके अपने प्यारे का इलाज करा सकते हो। आपको बताता चलूं, फाटा का वो इलाका जहां पे ऑपरेशंस हो रहे थे, जहां पे लोगों ने हिजरत की, जहां पे दहशतगर्दी थी, एक तवील दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान लड़ता रहा। 70,000 लोगों ने कुर्बानी दी इस दहशतगर्दी की जंग में, जिसमें हमारे आम पाकिस्तानी भी थे, हमारे पाक अफवाज के नौजवान थे। 70,000 लोग कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद उस एरिया को क्लियर कराया। मेरा जिस शहर से ताल्लुक है कोयटा, वो दहशतगर्दी की लपेट में सरे फहरिस्त था। आप यकीन करें कि एक दिन में 100 लाशें हमने उठाई धमाकों में। अभी 2 दिन पहले फिर आपने देखा कि एक अजियतनाक हादसा हुआ, दोबारा वहां पे एक मस्जिद के अंदर लोगों को शहीद किया गया। तो ये एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन हिंदुस्तान के एजेंट पकड़े गए, गुलभूषण पकड़ा गया बलूचिस्तान से। हम और आप एक ऐसी जंग में शामिल हुए थे जो दूसरे की जंग थी, और इस दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। माशी तौर पे भी पाकिस्तान तबाह हुआ। उस फाटा के इलाके के हवाले से हमने 26वीं तरमीम पेश की, कौमी असम्बली से कानून पास किया, फाटा के लोगों को पाकिस्तानी होने का हक दिया, उनको खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कराया। 72 साल के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हमने इख्तियार दिया कि वो अपने लीडर चुन सकें। सूबाई असम्बली का तारीख साज वहां पे इलेक्शन कराया, और जिसके अंदर अक्सरियती जमात फिर तहरीक इंसाफ बनी। उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और हमारे लोग सूबाई असम्बली के जो फाटा जो भी इंजमाम हो चुका है उसके लोग शामिल हुए। नौजवानों, बुजुर्गों, इसी तरह के और भी बहुत से काम आपने देखा कि जो PIA है जिसको तबाह कर दिया गया, जो 70 की दहाई में दुनिया की दूसरे नंबर की एयरलाइंस थी, सिर्फ इस 15 माह के अरसे में 70% खसारा PIA का हमने खत्म किया है।
वो जो करप्शन के खिलाफ जंग थी, जो हमारा शुरू से नारा था, आपने देखा वो लोग जो 3-3 दफा वजीर आजम बने, उनको इबरत का निशान बनाया, जेलों में बंद किया। आज से पहले, इससे पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। ये जो बड़े बड़े नाम थे, लोग कहते थे कि गरीब पकड़ा जाता है इस मुल्क में, अमीर चाहे जितनी बड़े से बड़ा चोर भी हो, वो नहीं पकड़ा जाता। Toronto 360 TV, best channel in Canada. One of the best channels in Canada. In fact, they're all great channels. बड़े बड़े नाम, आप यकीन करें, आज जेलों की सलाखों के पीछे हैं। आज हमसे बार बार जब मैं कौमी असम्बली की ईवान की सदारत करता हूं तो सदाएं आती हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। आज जो है वो बार बार इल्तिजा कर रहे होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इमरान खान, आप उस लीडर के सिपाही हो जिसने जिस चीज में भी हाथ रखा, कोशिश की, और हमेशा, चाहे वो क्रिकेट में थे उसके अरूज पे गए, चाहे उन्होंने फलाई काम शुरू किया तो शौकत खानम जैसा एक ऐसा अस्पताल बनाया जो नामुमकिन था, पेशावर में भी बनाया, कराची में बन रहा है, इंशाल्लाह कोयटा में बनेगा। आपने देखा कि दुनिया से जब पाकिस्तान लोग आते थे मुश्किलात का शिकार थे, हमने 175 ममालिक का ई वीजा शुरू किया। घर में बैठ के अपने लैपटॉप से लोग वीजे ले सकते हैं पाकिस्तान के। आपने देखा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, जब उसने देखा इससे पहले जो लोग बैठे थे वो दीमक की तरह अंदर से चाट रहे थे मुल्क को, तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए थे हिंदुस्तान ने कि अच्छा है अंदर से मुल्क ये खुद खा रहे हैं। जब साफ शफाफ क़यादत आई तो बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे दुश्मन से तिलमिला उठा, गलती कर बैठा हमला करने की, और जब जवाब दिया तो आपने देखा कि वो जो बड़ी बड़ी मूंछों वाले पायलट थे उनके, उसको पकड़ा, उसकी वर्दी, उसके जूते आज भी वहां पे हमारे पास पड़े हुए हैं, उसको वापस भेजा हमने अमन के पैगाम पे कि दोबारा ये गलती ना करना। ये जो पाक अफवाज है ये कोई मामूली फौज नहीं है, ये मुकाबला कर सकती है चाहे 10 गुना बड़ी फौज क्यों ना हो। आज भी फौज बॉर्डर पे है मेरे भाइयों बहनों, आज भी हिंदुस्तान उसी शैतानी अज़ाइम से है जो वो हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया जब हमारे लीडर ने पहली दफा मुआजना किया कि ये हिटलर है मोदी, इसकी सोच उसी तरह है, ये दुनिया में तबाही की तरफ लेकर जाएगा इस दुनिया को, पैगाम दिया दुनिया को। आप यकीन करें आज बड़े बड़े अमेरिका के अखबार भी तशबीह देते हैं हिटलर की मोदी को कि ये बिल्कुल इसके अज़ाइम उसी तरह हैं। तो ये लीडर की एक सोच थी, जब इमरान खान ने कहा दुनिया नहीं मान रही थी, आज पूरी दुनिया मानती है कि वाकई में ये हिटलर की शक्ल में एक और जनूनी इस दुनिया में आ गया है जिसके अज़ाइम खतरनाक हैं, जो अमन नहीं चाहता इस दुनिया में, जो लड़ाना चाहता है, मनफी सोच का एक आदमी। तो मेरे भाइयों आज भी पाकिस्तान की जो फौज है वो बॉर्डर पे है। 2 दिन पहले फिर आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान की फौज के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि अगर मुझे इजाजत दी गई तो मैं आजाद कश्मीर पे भी हमला करूंगा, जो कि नामुमकिन है। इंशाल्लाह पाक फौज और पाकिस्तानी अपने मकबूजा कश्मीर के भी भाइयों के साथ हैं और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इनका सफीर बनूंगा, मैं इनके लिए केस लड़ूंगा, और पूरी दुनिया में गए, हर जगह आपने देखा जिस बहादुरी के साथ इमरान खान साहब ने सलामती कौंसिल में अपना मुकदमा पेश किया, बल्कि कश्मीर का मुकदमा पेश करने गए थे, पूरी मुसलमान उम्मा का मुकदमा पेश किया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं, मुसलमान अमन का पैगाम लेके इस दुनिया में आया है। हम पर ये जो दहशतगर्दी का जो तुमने इल्जाम लगाया हुआ है, हम दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द तो ये हिंदुस्तान है, उसका मसकशुदा चेहरा दिखाया पूरी दुनिया को। तो मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान बदल चुका है, आज पूरी दुनिया एक इज्जत की निगाह से पाकिस्तान को देखती है। पाकिस्तान ने जो किरदारपुर की राहदारी, जो 550वीं गुरु नानक की जो सालगिरह थी, उस पर आते साथ ऐद किया था कि मैं खोलूंगा, और इस जंग की सूरत में भी जब हिंदुस्तान ने हमला भी किया तो उन्होंने अपने सिख बरादरी के साथ किया हुआ वादा पूरा किया। पूरी दुनिया से सिख बरादरी आई, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर अकलियतों को बराबरी की बुनियाद पर हक हासिल है। उन्होंने देखा कि जो अपनायत और जो प्यार दिया पाकिस्तानियों ने उन्हें, हमने कहा कि आप हमेशा आओ, अपनी इबादत गाहों में आओ, इबादत करो, और जिस तरह वो आए, उन्होंने शिरकत की, उन्हें पता चला, मैं आपको यकीन करता हूं कि एक सुनहरा दौर पाकिस्तान का शुरू हो चुका है। 2000 जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बताऊं, वो जो मुश्किल टाइम था 2019 का जो हमने गुजारा, और कौम ने भी बहुत मुश्किल हालात देखे, महंगाई भी हुई और मायूसी फैलाई गई। मीडिया पे ये जो तबका था जिनको हमने सबको इकट्ठे, वो जो दो बड़ी पार्टियां और उनके साथ जो मौलाना हजरात थे, जो कभी हमेशा से सियासत में हर जमात के साथ दिया, हर हुकूमत का, उनको जब अपोजिशन में बिठाया तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये नए लोग हुकूमत में, हम दो बड़ी जमातें अपोजिशन में, वो जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ, इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि अब जो वज़ीर आज़म बना है, वो दुनिया के हर मैदान में, चाहे जितने से सख्त मुश्किल हालात हों, वो उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो वो जो 2019 का दौर था, मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुजरा है। अब ये 2020 का जो साल है, ये इंशाअल्लाह जो है वो इक्तिसादी मजबूती का साल होगा। हमने नौजवानों के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज़ किया, 100 अरब रुपए के कर्ज़ों का ऐलान किया कि पाकिस्तान में नौजवानों को कर्जे देने शुरू किए। आप यकीन करें, सिर्फ 15 दिनों में 15 लाख से ज़्यादा लोगों की, नौजवानों की दरखास्तें आईं। एक शफाफ तरीके के साथ एक तरीक़ाकार पूरा बनाया गया। उसके हिसाब से उस्मान डार जो हमारा नौजवानों का कायद है, आप यकीन करें उसके पास भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी अपने दोस्त को अपनी सिफारिश पे कर्जा दे सके। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। आपने देखा अभी एक हफ्ता पहले फैसलाबाद में जो सनती जोन का इफ्तिताह किया, और चाइना की मदद से जो सीपैक के अंदर जो काम शुरू हो रहा है, और जिस तरह गवादर जो इंशाल्लाह माशी दरवाज़ा बनने जा रहा है पाकिस्तान का, वहाँ पे भी सऊदी अरब ने पहली इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगाने का कहा। आपके साथ कतर के अमीर आए, उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया। बहुत से हमारे जो ममालिक है, इस्लामिक ममालिक और दूसरे ममालिक, उन्होंने आगाज़ किया। आपने देखा बरतानिया के शहजादा और शहजादी आए, वो पाकिस्तान में फिरे, उन्होंने प्रमोट किया टूरिज़म कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहें पाकिस्तान में हैं और सस्ती तरीन तरीके से दुनिया के लोग देख सकते हैं। आपने देखा 2020 का बेहतरीन इंतखाब सयाहत का बरतानिया के जजीरे ने पाकिस्तान को करार दिया कि सस्ती और बेहतरीन सयाहत आप कर सकते हैं। तो बहुत सी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पाकिस्तानियों, जो आप कनाडा में रहते हो, आपके लिए भी हैं कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके लिए सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो बना है जो खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुका है।
जिसने दुनिया के बाहर पैसा कमाकर पाकिस्तान में लेकर गया है। सबसे ज्यादा ताल्लुकात उनके ओवरसीज में, पूरी दुनिया वो फिर चुके हैं। एक एक मुल्क में जो बेहतरीन पाकिस्तानी हैं आज वो इमरान खान के साथ मुंसलिक हैं। आप में से भी अक्सर पाकिस्तान आते रहते हैं और मिलते रहते हैं वहाँ पे क़यादत से और मशवरे भी देते हैं और आपके मशवरों पे अमल भी हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, हाउसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, टूरिज्म के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, और जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप पूरी दुनिया में जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हो, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ें लाकर आप मार्केट कर सकते हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस जमात से आपका ताल्लुक है जो तब्दीली की जमात है, जिन्होंने शिकस्त दी पुराने चेहरों को। तो आपसे मेरी ये उम्मीद है कि आपने आगे आकर, आप इस माशरे में रहते हुए भी आप टैक्स पेयर हो, आपको पता है कि टैक्स जिस माशरे में दिया जाता है तो वो मुल्क फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करता है, वहाँ के जो गरीब हैं उनकी मदद करता है, उनको वेलफेयर से पैसे देता है। हमने टैक्स का नेटवर्क बढ़ाया, जो सबसे बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान में। लोग टैक्स नहीं देते थे, उसका टैक्स का 15 महीने के अंदर तकरीबन 30% हमने उसमें इजाफा किया, लोगों का दायराकार बढ़ाया, लोगों को ज्यादा टैक्स के अंदर अभी लेके आए हैं। मैं आपको बताता चलूं, मुआसलात का जो हमारा मुराद सईद का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत बेहतरी हम लेके आए। डाक के अंदर तकरीबन 15 अरब रुपए की करप्शन बचाई सिर्फ हमने रोड्स के अंदर, 12 अरब रुपए का मुनाफा किया सिर्फ डाक के महकमे के अंदर। तो बहुत सी इस तरह की मैं आपको चीजें हैं जो आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन हौसले के लिए एक आपको बताता चलूं कि बहुत से इस तरह के काम हमने किए। हमने ज़ैनब के नाम से वो जो ख्वातीन का भी बिल पास किया, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। एक बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई उसके नाम से बिल पास किया कि पाकिस्तान में अगर कभी भी किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। हमने अपनी बच्चियों के लिए, ख्वातीन के लिए जो इस्लाम के अंदर उनको जो वरासत में हक दिया गया है उसका कानून पास किया कि कभी अब इस तरह नहीं होगा कि पाकिस्तान में कोई अपनी बच्चियों को हक ना दे सके। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम जमात की सियासत से बाहर आए। हमारा मुकाबला बड़े बड़े माफियाज के साथ है। जमात में, हर जमात में इलेक्शन होते हैं। हमने भी 2013 में इलेक्शन कराया। मैं बलूचिस्तान का 2 दफा सदर रह चुका हूं। मेरा मुकाबला भी वहां पे नवाबों और सरदारों से रहा है, सख्त मुकाबला। आपस में इसी तरह खींचातानी हर जगह होती है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इलेक्शन तक खींचातानी होती है। जब इलेक्शन करके आपको एक मनसब मिल जाए तो मनसब इसलिए मिलता है कि आप बड़े बन जाते हो। जब आप बड़े बनते हो तो बड़ापन आपने दिखाना है, आपने सबको इकट्ठा करना है, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, बड़ापन दिखाना है। लीडर हमेशा वो होता है जो जिसकी ऊंची सोच होती है, जो ऊपर का सोचता है, जो आगे का सोचता है, जो गलतियां माफ करता है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफत जो है वो माफ करना है। तो जिसने बड़ा, अगर आपने बड़ा ड्रीम है आपका, बड़ी सोच है आपकी, तो आपने हमेशा अल्लाह की वो सिफत अपने अंदर लेके आनी है, माफ करने वाली। माफ करो, भूल जाओ, आगे चलो। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारी जो नौजवान क़यादत है, हमें फख्र है कि हर जगह हर चीज़ में ज़रूरी होता है, और वही पार्टी आगे जाती है जिसके अंदर कारवां में लोग आते रहते हैं। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और वो माशरा जहाँ पे बुजुर्गों की इज्जत ना हो, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत ना हो, छोटी छोटी बातें हर जगह होती हैं, हर जगह। घर के अंदर भाइयों के साथ इंसान को गुस्सा आ जाता है, लड़ जाता है, बाप डांटता है। तो ये चीज़ें हमने अपने अंदर रखनी है, तंजीम के अंदर, और उसको हल करने की पूरी कोशिश करनी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो अभी मौजूदा जो टीम है उसको अल्लाह ने मौका दिया है, आपको मौका दिया है, आप अभी आपके हाथ में है तंजीम। हम आपके जो भी जमात है, जो भी है, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, मेरा आने का जो मकसद था, हालांकि कौमी असम्बली का इजलास भी था, बहुत मसरूफ़ था,
उस मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा था जो अपोजिशन की जमातों के साथ मुज़ाकरात कर रही थी। यहाँ पे मैंडेटरी था, यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस थी आपके उटावा में, वहाँ पर आना ज़रूरी था। उसके लिए मैं यहाँ पे आया सरकारी दौरे पर, और वहाँ पर इसी तंजीम के जो सीनियर नायब सदर हैं आपके नईम रियाजत, इनके भाई के साथ रहा। नईम रियाजत के साथ कार्निवाल इनके घर गया, तंजीमी आदमी के साथ, इन्हीं के साथ मॉन्ट्रियल गया, आपके वहां के तंजीमी लोगों के साथ। आज पहला यहां पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूं आपके साथ, तंजीमी लोगों के साथ, इस इमरान खान की तस्वीर और पीटीआई के साथ। तो ये तो थी तंजीम की बात। इंशाल्लाह आपको जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में वो तब्दीली का सफर शुरू हो चुका है जिसके आपने और मैंने ख्वाब देखे। मुश्किलात आती हैं, अभी भी बहुत सी चीज़ें गलतियां भी होंगी, उसको सही किया जाएगा। और ये जो मुकाबला है जो करप्शन के खिलाफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी करप्शन ऊपर की सतह पे होती थी, आज पूरी दुनिया मानती है कि एक ईमानदार शख्स ऊपर है। और इमरान खान वो शख्स है जो ना रिश्तेदारी देखता है, ना दोस्ती देखता है, ना किसी को देखता है, वो सिर्फ उसको देखता है जो उसके नजरिए पे चल रहा हो, सच्चाई का साथ दे रहा हो। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हम में से जो भी उसकी टीम का हिस्सा है, अगर उसने कोई भी करप्शन की, कोई मेरिट के खिलाफ फैसला किया, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जिंदा जमात है जो सबसे पहले खुद क्रिटिसाइज करती है अपने लीडरों पे, सबसे पहले खुद एहतसाब शुरू करती है उन पर। तो इबरत का निशान बनेंगे वो लोग जो कोई भी इस तरह का काम करेगा। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे आएगा। और एक दफ़ा फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने जिस तरह इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का साथ दिया हर मिशन में, आपने इस हुकूमत का भी साथ देना है। आप जो ओवरसीज पाकिस्तानियों, उनकी मदद के बगैर कभी भी पाकिस्तान तेज़ी के साथ वो मुकाम अचीव नहीं कर सकता जो हम चाहते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट भी लेके आनी है, आपने एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है पाकिस्तान की। और आप और मेरी पहचान पाकिस्तान है, हम उसी मिट्टी से हैं। तो इस वजह से उस मिट्टी का कर्ज है हम पे कि हम उसका कर्ज उतारें। और हम भी जिस तरह इस मुल्क में आप अमन से रहते हो, पाकिस्तान में भी वो 22 करोड़ अवाम रह सके, अमन का पैगाम दुनिया में दें। और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है, इस्लामी फलाई रियासत, उस मकसद की तरफ पाकिस्तान को ले जा सकें। एक दफ़ा फिर पीटीआई कनाडा की पूरी तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कामयाब प्रोग्राम पे। आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप आए और आपने इतने पेशेंस के साथ मेरी बातें सुनी। और मेरे साथ आपने नारा लगाना है, पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया। Qasim Khan Suri Sahab, बहुत बहुत शुक्रिया. It was a very inspirational and motivational speech with a lot of insight on what's going on in Pakistan. Thank you for updating us. Now I would like to invite Brother Sagar Mahmood, the Senior Vice President, on the stage, please. After this. Now I would like to invite Colonel Suhail Anwar, the General Secretary of PTI GTA Canada. Mr. Adnan Khan, the Additional General Secretary of PTI GTA. तालियों में कंजूसी नहीं करनी. Malik Tariq Sela, the Joint Secretary, please on the stage.
Now I would like to invite Mushtaq Khan, the Information Secretary, please. Now I would like to invite Saber Ali from the Finance Secretary. He's in Pakistan. Also, I think Apa Nikat Baksh is also in Pakistan. She is the Women's Wing. Khushkhal Khurshid, Youth Wing, please. Bilal Jatol for the Sports Secretary. Amir Khan for the Tourism Secretary, please. Nisar Kalu, Toronto City Coordinator. I apologize for this name. Atif Aral. I'm not sure whether I pronounced it right. He's the York Region Coordinator. Please on the stage. Mr. Nadeem Varaich from the Durham region. Muhammad Shafiq from the Peel region. Tariq Khan from the Barrie region. Is Tariq Khan here? Okay. Malik Aslam from Orangeville region. Farooq Bajwa, is he here? Think Tank? Is brother Farooq Bajwa here? Okay. Fida Khan, Advisory Council. The last and not the least, Nadeem Yunus from Hamilton, Niagara and St. Catharines region. Hello. Brother Ashraf Malik, please proceed to the stage. And Sister Hiba Shafiq on the stage, please. Siraj, sorry. And Mr. Shiraz, Brother Shiraz. He's the Vice President for the South Ontario.
Mr. Javed Sial, please, as well on the stage. He is advisor to the President. In case if I have missed any names, if you can please proceed to the stage, I will highly appreciate, because some of the names were not in the list. अस्सलाम वालेकुम। अकबर वराइच, प्रेसिडेंट पीटीआई जीटीए। मैं सब अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इमरान खान के जो हमदर्द सपोर्टर और पीटीआई के मेंबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज 24 आवर के नोटिस पे वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आज ये एक कामयाब सक्सेसफुल इवेंट जो कि हमने जनाब ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर और पाकिस्तान नेशनल असम्बली के ऑनर में डिनर अरेंज किया था, तो उनने शिरकत की और इस शिरकत में हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे जो एजुकेटर्स हैं या दूसरी इस तरह की जो हमारी पाकिस्तान से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उन्होंने शिरकत की और इस प्रोग्राम को कामयाब करवाने में मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और हमने काफ़ी जो है ना वो दिल खोल के जनाब डिप्टी स्पीकर कासिम हांसूरी के साथ बात की और उन्होंने भी हमें पाकिस्तान के लिए जो है ना वो एक अच्छी और रोशन जो है ना वो आने वाले वक्त की नवीद सुनाई। तो इंशाल्लाह लीडरशिप हमारी जनाब इमरान खान साहब की क़यादत में और जैसे कि हमारे लीडर यहाँ पे जो तशरीफ़ लाते हैं, तो ये एज़ाज़ हम हासिल करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपने दोस्तों को अपनी लीडरशिप से मिलवाएं ताकि उनके हौसले बुलंद रहें और पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जो है वो उनके दिलों में रहे। तो मीडिया का शुक्रिया और जो भी हमारे जो है ना वो दोस्त अहबाब यहाँ पे शामिल हुए, एक दफ़ा मैं फिर अपना तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने जो हमारे पीटीआई के अपोनेंट ग्रुप हैं उनकी शिरकत ने भी मुझे बहुत जो है ना वो बूस्ट और हौसला दिया। देखें, हमारे इलेक्शन हो चुके हैं, अब इलेक्शन के बाद ये पीटीआई का ही हुस्न है कि इसमें रनर अप और जो विनर है वो दोनों एक जगह पे जमा थे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड कि मुझे अपनी जो साबका टीम है उनके साथ फिर से काम करके और इस पार्टी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। और हम इसको 3 स्टेजेस पे जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। पहले स्टेज में हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है और जो कि रीजन वाइज है, इसके बाद हम सिटी वाइज वर्किंग काउंसिल बना रहे हैं और इसके बाद हम जो है ना वो काउंसिल बनाएंगे। काउंसिल विल बी लाइक ए पार्लियामेंट और जितने के हमने वोट हासिल किए और जो हमारे रनर अप पैनल था उन्होंने वोट हासिल किए, इनको हम जमा कर लें और उनको जितने भी मेंबर हैं 33 या 25 पे डिवाइड कर देंगे और तनासब के हिसाब से उनको पीटीआई में नुमाइंदगी मिलेगी। मेरी कोशिश होगी कि पीटीआई का कोई भी जो नज़रियाती वर्कर है और जो डिवोटेड है पाकिस्तान के लिए और कुछ करना चाहता है, वो चाहे मेरा अपोनेंट ही क्यों ना हो, मैं उसको अपने साथ जो है ना वो इंशाल्लाह रखूँगा और उसके टैलेंट को और उससे जो पाकिस्तान को और पीटीआई को जो इस्तेफ़ादा या फ़ायदा हो सकता है, हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी जो है ना वो अपनी कोई पर्सनल किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये पीटीआई का इदारा और कॉन्स्टिट्यूशन जो पीटीआई का है और बायलॉज, कोड ऑफ कंडक्ट, इसको रिस्पेक्ट किया जाए और इसको और मजबूत बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। जी अर्शद भाई और स्पेशली थैंक यू वेरी मच टोरंटो 360 का और टोरंटो 360 टीवी और अरशद भट्टी साहब और साबर घाया साहब, आपका शुक्रिया
आप हमारे हर इवेंट को जो है ना वो कवर करने के लिए आते हैं और वी आर सो हम्बल। लास्ट इवेंट जो कायद आज़म डे पे आपने कवर किया था, आई एम ऑनर्ड एंड प्राउड दैट वी हैव अ पीपल लाइक यू इन आवर कम्युनिटी। यू आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Ashraf Malik. I'm the Additional General Secretary PTI Canada. आज हमारे PTI GTA चैप्टर ने एक बड़ा अच्छा खूबसूरत रिसेप्शन होल्ड किया है, डिनर इन ऑनर ऑफ Mr. Suri, the Deputy Speaker of Pakistan National Assembly. Very outspoken and representing really the spirit of PTI. He expressed his thoughts about Pakistan, about PTI, and especially about overseas Pakistanis community in Canada, that how important this overseas Pakistani community is for Pakistan and for PTI. Actually, the whole credit goes to PTI GTA team, Mr. Akbar Waraj, the president, who organized this event. It was a houseful event. A lot of important people were in attendance. We thank everybody who came here and supported. We thank the media. We especially thank Toronto 360 for coming here and giving us the coverage, giving PTI the coverage, and Mr. Suri was here. So thank you so much. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान ख़ान है। आई एम द एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PTI GTA कैनेडा एंड हमारी तरफ से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अकबर वड़ाई साहब, उन्होंने माशाल्लाह GTA का बहुत बड़ा प्रोग्राम ओंटारियो के लेवल पे मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हमने हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे कासिम खान सूरी, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली पाकिस्तान, और माशाल्लाह से प्रोग्राम हमारा बहुत कामयाब हुआ है। माशाल्लाह से बड़ी तादाद में लोगों ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर, और कासिम खान सूरी की भी शमूलियत जो हमारे लिए बायस मुसर्रत है, और हम बहुत ज़्यादा ममनून हैं कासिम खान सूरी साहब के और PTI कनाडा लेवल के कि जिन्होंने हमारे साथ मिलके बहुत बड़ा ताउन में फ़राहम किया, और उसके हम बिलखुसूस उनके साथ बहुत ही उनके शुक्रगुज़ार हैं स्पेशली। और ख़ास करके हमारे जो प्रेसिडेंट अकबर वड़ाई साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम को 24 आवर्स अरेंजमेंट किए हैं उन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए स्पेशली। तो हम अपनी पूरी PTI GTA कनाडा को बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनके ताउन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Toronto 360 TV, best channel in Canada. One of the best channels in Canada. In fact, they're all great channels.